Hello, friends, and welcome back to one more chapter on the channel Formulation Research and Development, Pharmaceutical Formulation Research and Development. So, moving forward, uh, I think in the last lecture we have seen the type of impurities, how the impurities are identified, and how we decide the route or how we decide the route of formulation development based on the impurities. Actually, the actual formulation development or how these impurities and the limits plays the role in deciding the formulation pathway we will see in as we move further. Till now, what we have seen is that how to identify the or how to get known about the impurities available or the impurities associated with the molecule which you are working upon. So till now in the literature search part, we have seen uh, about solubility, techniques of solubilization, and what inference we get with the solubility data. After solubility, we have seen the part related with impurities or the degradation pathway. We have understood the degradation pathway, possible degradation pathway, type of impurities being generated or the pathways of impurities, and identification of the pathways we have seen. So once this is done, the third thing which we look after is the bioavailability and bioequivalence. So now, as I have told you, that generic product जब भी हम बना रहे हैं, तो at the time of manufacturing of generic product, what is our target? Our target is to match the bioavailability with the innovator. So to match the bioavailability means to match the concentration of the drug entering into the plasma with the concentration of drug and of the innovator. So once we start with this activity, so in generics it is very important to match the bioavailability with the innovator, and that is called as making it bioequivalent, making our product, test product, bioequivalent with innovator. So the for any generic product, whether it be a product for US FDA or whether it be for Europe market or other ROW products, the prime requirement is the matching of bioavailability or matching of the plasma profile of the drug. And how do we match the plasma profile of the drug? So basically, we dose the innovator and we dose the test product, and then we take the blood samples, and then we study the concentration or against time how the concentration is appearing. Of course, this we will discuss complete bioavailability, bioequivalence detail, and all, and the type of BE studies and all when we complete the formulation developmental part. Because before that our formulation should be ready, so there we will be studying about the type of bio studies and all. But as of now, since we are doing the literature search and all, there is some information which we need to gather to have a at least a broad idea that what can be our expectation. So as I told you, the prime focus is to develop a product which is बायोइक्विवेलेंट टू इनोवेटर. और जब हम बायोइक्विवेलेंट बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि प्लाज्मा में जैसे इनोवेटर अपीयर होता है या इनोवेटर का कॉन्सेंट्रेशन आता है, उसके सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन होना है, जो कि मैंने आपको एक इनिशियल लेक्चर्स में भी बताया था कि 80 to 125 की लिमिट दी हुई रहती है. आपकी मिनिमम लिमिट 80 से नहीं जाएंगी और मैक्सिमम लिमिट 125 से नहीं जाएगी. और ये किस चीज़ की होती है? ये सीमैक्स, AUC इन्फिनिटी की लिमिट होती है. और ये लिमिट एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन से आती है, जो कि क्लिनिकल साइंटिस्ट जो है आपको कैलकुलेट करके देता है. बट आपको ये लिमिट के अंदर होना होता है, तभी आपका प्रोडक्ट बायोइक्विवेलेंट किया कहा जाता है.
और जब तक आप 80 to 125 के लिमिट में अंदर नहीं आते हो आप प्रोडक्ट फाइल ही नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपका बायो पास ही नहीं हुआ है, मतलब आप इक्विवेलेंट नहीं हो इनोवेटर के। जिस प्रोफाइल में इनोवेटर ड्रग रिलीज कर रहा है प्लाज्मा में, उस प्रोफाइल में अगर आप रिलीज नहीं कर रहे हो तो आप बाइक्वेलेंट नहीं हो, तो आप यूएस एफडीए को प्रोजेक्ट अप्लाई ही नहीं कर सकते हो, फाइल ही नहीं कर सकते हो। तो जब ये होता है तो इसके लिए ये होता है कि आपको जब बाइक्वेलेंट प्रोडक्ट बनाना होता है तो आप इतना तो आपको समझ में आ गया कि फॉर एनी जेनेरिक वी हैव टू मैच द प्लाज्मा प्रोफाइल विद दैट ऑफ इनोवेटर। तो इसको करने के लिए हम आगे ट्रायल्स भी हमारे बहुत सारे इसके ऊपर फोकस रहेंगे। हम डिसोल्यूशन मैच करके इन विट्रो मैचिंग कैसे करते हैं तो आगे जब डेवलपमेंट आएगा तब हम करेंगे, लेकिन कुछ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अभी हमको देखनी होती है। तो जब हम ये इंफॉर्मेशन हम कहाँ कहाँ से और क्या क्या देखेंगे, अभी तो बहुत ब्रॉड उसमें देखेंगे, और फिर जब बायोअवेलेबिलिटी का सेक्शन आएगा वहाँ हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी ये जो इंफॉर्मेशन है, दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। एक तो आपका ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप जब प्लाज्मा ये आप लिटरेचर सर्च देख रहे हो तो आप एक तो ड्रग के एडीएमई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो। तो ये एडीएमई क्या है, आई थिंक सभी को पता होगा ही, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीजन। तो ये ड्रग का देखते हो तो एक तो है कि इनिशियल लिटरेचर में ड्रग के एडीएमई यानी ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है। फार्माकोकाइनेटिक यानी ड्रग किस तरीके से बिहेव करता है आपके बॉडी में जाकर, या फिर ड्रग का रिलीज पैटर्न कैसा होगा, अब्जॉर्ब कैसा होगा, ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट कैसा होगा, मेटाबोलाइज कहाँ से होगा, एक्सक्रीट कैसे होगा। ये पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको कॉमनली इस साइड स्पेस पे मिल जाते हैं। तो इससे आपको एक जैसे का मतलब इनिशियल इसमें आपको ये ड्रग के जो एडीएमई कैरेक्टरिस्टिक्स है, या चाहो तो ले लो, लेके लिख लो, ये कर लो। इसका बेसिकली आपको हाफ लाइफ समझ में आ जाएगा, आपका एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है, कौन से पार्ट से हो रहा है वो समझ में आ जाएगा, और आपको ऐसे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, एक्सक्रीट कैसे हो रहा है, समझ में आ जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ फिलवक्त या जेनेरिक में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है। ड्रग के डीएमई कैरेक्टरिस्टिक ऑफकोर्स होती है कुछ स्पेसिफिक केसेस में, लेकिन इस केस में आपको ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक से ज़्यादा आपको इनोवेटर का, मतलब जो ड्रग का जो फॉर्मुलेशन है वो फॉर्मुलेशन ब्लड में जाके किस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्योंकि जब ड्रग को आपको एक फॉर्मुलेशन में फॉर्मुलेट कर देते हो तो उसके एडीएमई कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हद तक चेंज हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन तो ऑफकोर्स आप फॉर्मुलेशन से चेंज कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन फिर चेंज होता है, मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीजन अगेन जैसा अवेलेबल हो मेटाबोलाइज करने के लिए, अब्जॉर्ब होकर आया तो ही होगा। तो ये होता है जो ड्रग के एडीएमई कैरेक्टरिस्टिक नो डाउट इम्पॉर्टेंट आपको समझने के लिए, उसके फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और ये सब समझने के लिए, और बॉडी में क्या करता है इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करते समय इस ड्रग के एडीएमई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा इनोवेटर का एडीएमई, या एटलीस्ट इनोवेटर का एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कि इनोवेटर किस तरीके से रिलीज हो रहा है, इनोवेटर का क्या प्रोफाइल चल रहा है, या इनोवेटर का क्या सीमैक्स आया है, इनोवेटर का क्या एयूसी आया है, इनोवेटर आईआर रिलीज टैबलेट दे रहा है, या डिलेड रिलीज दे रहा है, या एक्सटेंडेड रिलीज दे रहा है। ऑफकोर्स एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको द मोमेंट आपका जब प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया तभी समझ में आ जाता है कि इनोवेटर आईआर है, डीआर है या ईआर है। उसके अलावा आपको फिर लेकिन इनोवेटर की एडीएमई कैरेक्टरिस्टिक देखना होगा। तो इनोवेटर का एडीएमई आपको कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए 2-3 तरीके हैं। पहली चीज़ तो आपको फर्स्ट थिंग इज दैट आप इनोवेटर का जो भी मार्केट नेम है, जैसे एग्जांपल मैं आपको किस चीज़ का एग्जांपल दूँ, चलिए हम ग्रीसियोफिल्विन का ही लेते हैं। तो ये मार्केटेड जो इनोवेटर है ये ग्रीफल्विन है। तो आप इसको डाल दीजिए गूगल में और इसका काइनेटिक पैरामीटर देखिए तो आपको मिल जाएगा काफ़ी हद तक काइनेटिक पैरामीटर। सेकेंड थिंग, आप अगर ये गूगल में डालते हैं तो ये मिल जाएगा। और सेकेंड थिंग जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढ के निकालनी होती है, अभी तक तो आपके पास इनोवेटर आया नहीं, आप लिटरेचर सर्च में ही हो,
लेकिन आप जब आपको प्रोडक्ट का नाम पता है तो आप एक चीज कर सकते हो, आप ग्रियोफल्विन डाल के आप इसमें डाल सकते हो कि पीआईएल। तो ये पीआईएल क्या होता है? प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लिफलेट। तो आप इसने जिसने भी आपने यूएस का प्रोडक्ट देखा होगा या यहाँ के भी कुछ प्रोडक्ट दो तो उसके साथ में बॉटल के कैप के ऊपर में एक लिफलेट अटैच होता है। वो लिफलेट में पूरा एक अच्छा खासा समरी होता है जो कि हर इनोवेटर को और हर जेनेरिक प्रोडक्ट को यूएस मार्केट में लगाना ही होता है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको बताया जाता है या उसको कहा जाता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिफलेट। तो ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिफलेट जो होती है ये आपको जब आप इनोवेटर लाओगे तब बॉटल पे मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपने इसको ब्रांड नेम से गूगल में डाला और पीआईएल लिख के सर्च किया या लिफलेट लिख के सर्च किया तो ये डेफिनेटली आपको गूगल से ही मिल जाता है। इसको लेबलिंग इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लिफलेट बोला जाता है, लिफलेट बोला जाता है। टर्मिनोलॉजी बहुत अलग अलग है, लेकिन ये आप गूगल में अगर इनोवेटर का नाम और पीएल डाल दो तो आपको सेकंड या थर्ड इसमें या कभी कभी तो फर्स्ट इसमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये डॉक्यूमेंट ऑफकोर्स आप जब इनोवेटर मंगाते तो उसके साथ मिलता है, लेकिन इनोवेटर आने से पहले जब आप इंफॉर्मेशन देखना होता है तो आपको ये पीआईएल में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो पीआईएल में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जब जैसे पीआईएल आपने ले लिया, लिफलेट ले लिया, तो उस लिफलेट में से आपको जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी या जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि इनोवेटर के स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। स्ट्रेंथ या लेबल क्लेम कितने कितने टाइप का है। स्ट्रेंथ मतलब जो लेबल क्लेम होता है अलग अलग लेबल क्लेम में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखना चाहो तो टेल मी सर्टेन टैबलेट आपको 20 mg मिलता है, 40 mg मिलता है, 60 mg मिलता है। तो ये इसको स्ट्रेंथ कहा जाता है। ऑफकोर्स आपको पता होगा बीइंग फार्मा स्टूडेंट। तो ये स्ट्रेंथ आपको पहले पता हो जाता है कि इसमें स्ट्रेंथ कितने हैं, 2 स्ट्रेंथ है, 3 स्ट्रेंथ है, 4 स्ट्रेंथ है, कभी कभी 12 स्ट्रेंथ हो सकते हैं, 15 स्ट्रेंथ भी हो सकते हैं अलग अलग। तो ये एक स्ट्रेंथ क्या है इनोवेटर की समझ में आ जाता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझ में आती है इसमें से अगर आप जब ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लिफलेट पढ़ते हो तो आपको इसका जो स्ट्रेंथ के अलावा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या क्या इनएक्टिव एक्सिपिएंट गए हैं ये पूरा आपको यहीं पर मिल जाता है। इनएक्टिव एक्सिपिएंट मतलब एपीआई के अलावा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या ड्रग के अलावा क्या यूज होता है, ये पूरे एक्सिपिएंट की लिस्ट आपको यहीं पर मिल जाती है। और जैसे मैंने बताया कि हम जब सिंस वी आर मेकिंग अ जेनेरिक प्रोडक्ट हमारा काम ही ये होता है कि हम पूरे इनएक्टिव मैच कर ले, क्योंकि वो ज्यादा आसानी से जाता है। मतलब आपको स्टेबिलिटी के लिए अच्छा होता है और आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। और क्योंकि इनोवेटर ने वो एक्सिपिएंट यूज किया है तो बायोअवेलेबिलिटी के उसके क्लोज आने को भी चांस मिलता है। तो यहाँ पर आपको पूरे इनएक्टिव मिल जाता है, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम इनएक्टिव खाली आपको नाम से मिलते हैं, ग्रेड जो नहीं मिलते तो ऑफकोर्स वो तो आपको आपके ट्रायल से उससे फिर वापस से फाइनलाइज करना होगा, लेकिन ये इनएक्टिव ये मिल जाते हैं। तो आप जैसे जो व्हाइट पेपर या जो प्रेजेंटेशन आप तैयार कर रहे हैं जिसमें आपने पहले सॉल्युबिलिटी लिख डाला, उसकी कंक्लूजन लिख डाले, फिर इम्प्योरिटीज या डिग्रेडेशन लिख डाला, उसका कंक्लूजन लिख डाले, तो थर्ड पार्ट इज दैट इनोवेटर इंफॉर्मेशन लिख डाले। तो इसमें आपको स्ट्रेंथ मिल जाएंगे, ये आप कंपाइलेशन में ले लीजिए। अभी कौन सी स्ट्रेंथ रेफरेंस लिस्टेड ड्रग होती है ये होती है हम आगे जाके देखेंगे। इनएक्टिव्स क्या होते हैं वो लिख डाल लीजिए, तो क्योंकि फिर आपका एक ऑब्जर्वेशन ये भी हो जाएगा कि आप ये इनएक्टिव्स आपने यूज करना है। अब यहाँ एक दूसरी एक चीज है कि अगर आपको इनोवेटर जो है अगर इसका पेटेंट अवेलेबल है और पेटेंट लाइव है तो ऑफकोर्स आप शायद कुछ इनएक्टिव यूज नहीं कर पाओगे पेटेंट बाईपास करने के लिए, तो दैट इज अ डिफरेंट केस। बट लेकिन अगर आप पैरा 3 में कर रहे हो तो आपको पूरी इनएक्टिव की लिस्ट मिल जाएंगी जो कि आपको कॉपी करना है। कॉपी नहीं करना है मतलब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, लेकिन ग्रेड्स और उसका रिलीज पैटर्न और स्टेबिलिटी वो सब आपको फिर भी सिलेक्शन करना होगा। तो ये दो चीजें जब आपको पीआईएल से पता हो गया, तो थर्ड चीज जो मैं बता रहा था एडीएमई। तो
यहाँ पर यूजुअली हर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लीफलेट में ड्रग का आपका रिलीज पैटर्न कैसा होगा, डोसेज फॉर्म से, हाँ प्लेन ड्रग नहीं, डोसेज फॉर्म में से आपका ड्रग कैसा रिलीज होगा, कैसे अब्जॉर्ब होगा, कहाँ से होगा, ये पूरा दिया हुआ होता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपने निकाल लेने को होना, बिकॉज यहाँ पर से आपको टी मैक्स मिलेगा। अब टी मैक्स क्या है आप पूछोगे तो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव सी मैक्स। सी मैक्स क्या है पूछोगे तो सी मैक्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑब्जर्व्ड इन ब्लड। तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो ब्लड में आ रहा है उसको सी मैक्स बोलते हैं, और उस सी मैक्स को अचीव करने के लिए टाइम कितना है तो टी मैक्स है। तो अभी अगर ये टी मैक्स है तो ये टी मैक्स से आपको बहुत सारे आइडिया मिलता है कि आप डेवलप कैसा करना है। एक तो आपको पहले से आपको पता है आईआर प्रोडक्ट है या ईआर प्रोडक्ट है, लेकिन इस टी मैक्स से आपको ये भी पता हो जाएगा कि आपका कितने टाइम तक आपका ये होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आपको एक तो डिसोल्यूशन मॉडिफाई करने में या डिसोल्यूशन का टारगेट ढूंढने में मिलेगा, क्योंकि जहां टी मैक्स है उसके हिसाब से आपको ये करना होगा। सेकेंड थिंग जो है आप टी मैक्स के उस पर यूजुअली आगे जाके देखेंगे जो स्पेसिफिकेशन होते हैं आपके ड्रग प्रोडक्ट के डिसोल्यूशन के स्पेसिफिकेशन, एक टाइम पॉइंट हम टी मैक्स के आसपास भी रखते हैं। ये आई थिंक थोड़ा सा हेवी चीज होगी अभी के लिए, तो लेकिन जस्ट मैं बोल के रख रहा हूँ, लेकिन स्पेसिफिकेशन कैसे सेट होते हैं फिनिश प्रोडक्ट के उसका बताऊंगा। सस्टेन रिलीज अगर प्रोडक्ट है तो आपका एक टाइम पॉइंट आउट ऑफ 4 पॉइंट में से एक टाइम पॉइंट आप यूजुअली टी मैक्स के आसपास रखते हो। ये अभी के लिए बहुत हेवी है, लेकिन जैसे आप इतना ध्यान में रखिए, जब हम जाएंगे स्पेसिफिकेशन फिक्स करने टाइम उस टाइम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और उस टाइम आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको टी मैक्स मिल गया, आपको सी मैक्स मिल गया कि क्या कॉन्सेंट्रेशन है, और फिर आपको और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है ये भी मिल जाता है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती है ये आपको लिफलेट में से मिल जाती है। तो लिफलेट में से इस इन्फॉर्मेशन का भी काफी हद तक यूज होता है। मोस्टली टी मैक्स आपका क्या रहेगा, ये आपको हेल्प करता है आपका फॉर्मुलेशन डिजाइन करने में, क्योंकि आपको आप टी मैक्स मैच करोगे तो बाकी सब चीजें आपके मैच होते जाएंगी। नॉट नेसेसरी कि इतना आसान है टी मैक्स को मैच करना, लेकिन मेजोरिटी चीजें हो जाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऑफकोर्स इस इंफॉर्मेशन के अलावा हम बायो गाइडेंस और बायोलेबिलिटी का क्या रहता है वो आगे जाके देखेंगे जब हमारे ट्रायल्स कंप्लीट होंगे। लेकिन अभी के लिए लिटरेचर सर्च में अब जो इनोवेटर की पिल है वहां से आपको स्ट्रेंथ मिल गया, इनएक्टिव मिल गया, इनोवेटर का एडीएमई मिल गया, इसके हाउ सप्लाइड भी मिल गया आपको। इसमें हाउ सप्लाइड मतलब पैक कैसा है, पैक कैसा है, कितने टैबलेट का है, 30 काउंट है, एक बॉटल में 30 टैबलेट है या 90 है या 30 90 दोनों है या 1000 दोनों है, ये सब पैक मिल गया। तो आपको क्या होता है बेसिकली इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन जो इनोवेटर जो पैक में पैक किया है आपको वही पैक में पैक करना होता है। यूजुअली 30 90 होता है और एक बड़ा पैक होता है 500 या 1000 में, तो आपको उससे भी मैच करना होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन अगेन ये मैंडेटरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इनोवेटर 30 में पैक कर रहा हो, आप 90 में करिए। अगर इनोवेटर 90 में कर रहा है और आपने सब कोशिश करा के भी आपका पैक इन यूज में उसमें अगर स्टेबल नहीं हो रहा है तो आप 30 में करिए, वो आपको कोई ऐसा ये नहीं है। लेकिन आपको अगेन मार्केटिंग के हिसाब से जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा टू बी कॉम्पिटेटिव एंड ऑल, इनोवेटर जैसे सिमिलर सप्लाई रहा तो ये है। तो आपको इनोवेटर का कैसा सप्लाइड है और क्या पैक्स है और क्या डिटेल्स है पैकेजिंग के ये भी मिल जाते हैं आपको। फिर इनोवेटर का मैन्युफैक्चरर नेम मिलेगा, और फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग साइट भी मिल जाएंगी, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है। ये भी हेल्प करता है बहुत बार कि आपको साइट वो समझ में आए तो उससे भी आपको कुछ आइडिया लगता है। इसके अलावा इसमें से और आपको अपार्ट फ्रॉम हाउस सप्लाइड मैन्युफैक्चरर नेम एक मिलता है आपको एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट मिलता है तो आपको ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ इनोवेटर में यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं दी होती है, एक्सपायरी डेट दिया होता है। तो वो एक्सपायरी डेट से आप बहुत कुछ समझ सकते हो आपके इसकी एक्सपायरी डेट कितनी चल रही है। ये आपको बॉटल वाला जब लीफलेट आएगा वहाँ मिल जाएगा, तो क्या एक्सपायरी डेट है इससे आपको अंदाजा तो एटलीस्ट लग जाता है कि आपके पास जिस टाइम पे आया उस टाइम पे वो कितना पुराना है। मतलब 3 महीने 4 महीने आपको आते लग गए तो और आगे का जो उसका एक्सपायरी डेट है उससे आप इसका एक्सपायरी वो भी निकाल सकते हैं।
तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन लीफलेट से मिलती है। तो अगेन जैसे आपका व्हाइट पेपर में एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि स्ट्रेंथ क्या है, आपके इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये आप कैसे यूज करोगे, यूज कर सकोगे या नहीं कर सकोगे, इनोवेटर का टी मैक्स सी मैक्स क्या है, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, कहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये मिल जाएंगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की इंफॉर्मेशन और एयूसी की इंफॉर्मेशन भी मिलती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। एब्जॉर्प्शन की साइट मिल जाती है आपको टी मैक्स के हिसाब से। तो एब्जॉर्प्शन की साइट जब आपको मिल जाए तो आपको उस हिसाब से आपको फॉर्मुलेशन को फॉर्मुलेट करने के लिए आपको समझ में आता है कि आपने कहाँ से रिलीज करवाना है, तो ये मिल जाती है। सप्लाइड आपका पैक कैसा है, कितना साइज का पैक है, ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आप गैदर करोगे और आप गैदर करके एक जगह इसको पूरा जमा करोगे और जमा करके आप इसको इनोवेटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन में डालोगे। ऑफकोर्स जब इनोवेटर आएगा तो इनोवेटर का एक कैरेक्टराइजेशन होगा, उसको आप एनालिसिस करके और बहुत सारी चीजें आपके हो जाएंगे। लेकिन इनोवेटर आने से पहले इतने सब चीजें मिल जाते हैं। और इसके अलावा और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक साइट होता है rxlist.com। तो ये rxlist.com पे आप अगर जाके इनोवेटर के नाम से सर्च करो तो इनोवेटर के काफी सारे डिटेल्स मिल जाते हैं आपको ब्रांड नेम के हिसाब से। आपको फिर यहाँ पे ये भी मिलेगा कि इनोवेटर का जो टैबलेट्स है वो टैबलेट का कई बार वेट मिल जाता है या पंच टूलिंग मिल जाता है, तो आपको आइडिया आ जाता है कि आपका टैबलेट का वेट क्या रहेगा। तो अगर आपको पंच टूलिंग हो उस हिसाब से ऑर्डर करने हैं, या आपके पास एग्जिस्टिंग वो पंच टूलिंग है कंप्रेशन में जो यूज होता है, तो उससे आपको वो समझ में आ जाएगा। अगर आपका कैप्सूल प्रोडक्ट है, आपको फिलवेट मिल जाता है कभी कभी, तो फिलवेट से आपको आइडिया आ जाएगा कि आप कौन से कैप्सूल शेल को टारगेट करना चाहते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको आरएक्स लिस्ट से मिलेगी। तो आप जब भी लिटरेचर सर्च करते हो तो एक तो गूगल पे डाल के इनोवेटर का प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिफलेट निकाल लिया। उसके अलावा आप आरएक्स लिस्ट पे गए, आरएक्स लिस्ट पे जाके आपने चेक किया कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। आरएक्स लिस्ट में से आपको टैबलेट का वेट मिल जाता है, आपको टैबलेट का डायमेंशन भी मिल जाता है, इनएक्टिव्स भी मिलते हैं, कभी कभी ग्रेड भी मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये पूरे चीज़ें फिर आपको कंपाइल करना होता है। आप जैसे द मोमेंट आप ये सब चीज़ें कंपाइलेशन कर ले तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि आपका टैबलेट वेट क्या होगा, टैबलेट का पैटर्न क्या होगा, शेप क्या होगा, साइज क्या होगा। और यहीं पर अब जाके एक जो है आपको जो मैं आपको ट्रायल जब यूज स्टार्ट करेंगे तब बताऊंगा कि एक गाइडलाइन आता है साइज एंड शेप। तो वो गाइडलाइन आपको आपका साइज और शेप इनोवेटर के कंपैरिजन में कितना हो सकता है, कितना आप डेविएट हो सकते हैं वो है। तो वो गाइडलाइन भी हम डिस्कस करेंगे जब हम ट्रायल स्टार्ट करते रहेंगे, वेट कैसा फिक्स करते हैं। लेकिन यहाँ से आपको rx.com पे से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इसके अलावा आपको यहाँ से पैकेजिंग की भी इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो मैंने जैसे आपको बार बार बताया हूँ कि यूएस में कभी भी बॉटल पैक ही होते हैं। रेयरली एक आधा कोई प्रोडक्ट आपको स्ट्रिप में या एलयू में या इसमें दिखेगा पीवीडीसी में। मेजर बॉटल पैक होते हैं तो उसमें काउंट्स क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। अगेन आपके हॉस्पिटल पैक्स क्या हो सकते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। और पैकेजिंग का इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक मिल जाएंगी। और कभी कभी बॉटल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है उसके ऊपर में प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लिफलेट से। इसके अलावा जो मतलब उतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होता, लेकिन अगर इसमें जाके देखोगे तो इसमें आपको साइड इफेक्ट्स मिल जाते हैं। और साइड इफेक्ट्स के अलावा एडवर्स रिएक्शन क्या हो सकते हैं ये मिलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है, बट क्या होता है कि ऑलरेडी इनोवेटर ने ये सब यूज करके इनोवेटर ने अपने साइड इफेक्ट्स वो आइडेंटिफाई कर लिया और इनोवेटर मार्केट में उस हिसाब से चल रहा है तो उसके को तो पता है। तो जैसे आप अगर इनोवेटर कोई मैच कर रहे हो तो आपके लिए द मोमेंट आप इनोवेटर को मैच कर ले तो बाकी सब चीजें भी फिर आपके मैच होते जाएंगे। बायो आपने मैच कर लिया तो बाकी सब चीजें मैच हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको एकदम एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट नहीं है साइड इफेक्ट्स हो, लेकिन आपने कभी भी देख लेना चाहिए क्योंकि बीइंग अ फॉर्मुलेशन डेवलपमेंटल साइंटिस्ट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मॉलिक्यूल और आपका डोसेज फॉर्म कुछ साइड इफेक्ट देता है क्या, क्या देता है, कैसे देता है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से लिफलेट से मिल जाएंगी। तो आप ये पूरा, अब मैं बोलते वक्त तो यह हो सकता है कि ये 20-25 मिनट का किया, लेकिन ये 4-5 दिन की एक्टिविटी होती है। ये पूरा देखना, समझना, इवेल्युएट करना और आप अपना एक रिपोर्ट बनाना और फिर इसको डॉक्यूमेंट करना। कैसे डॉक्यूमेंट करना है फिर आपको आपके हायर अप से डिस्कशन होगा,
आप डिस्कस करोगे कैसा करोगे ये सब, तो ये सब चीज़ें इस तरीके से करोगे। तो ये यहाँ से हो गया कि आपको इनोवेटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, तो आपका सॉल्युबिलिटी और डिग्रेडेशन प्रोफाइल के बाद में इनोवेटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में आपको काफ़ी हद तक आइडिया आ जाता है कि आपको किस हिसाब से आपका फॉर्मुलेशन ट्रायल रन होगा। अब इसके आगे जब हम जाएंगे तो और इनोवेटर के रिलेटेड में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी जो हम मैच करेंगे, लेकिन ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको गूगल से या rx.com या rxlist.com से या और थोड़े आप साइट्स ढूंढते हो, वो साइट्स में आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में आपको साइट्स के नाम वो भी बता दूंगा, तो वो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो इनोवेटर रिसीव होने से पहले आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको नेट पे से लिटरेचर सर्च से ही मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन करना होगा। तो यह है, तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है ये इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आगे हम कैसे करेंगे हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। एंड आई थिंक that's all for today, and I hope you are understanding whatever I am saying. Again, as I am telling again and again, you are always welcome to put in questions and all. There are a few people who are just giving me many valuable comments. कुछ लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू जो भी ये लेक्चर सुन रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है, या मुझे जो भी अप्रिशिएट भी कर रहा है एफर्ट्स के लिए या इसके लिए, थैंक यू फॉर दैट, और थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एज वेल। एंड आई विल मेक श्योर कि आप अगर इस पर टाइम डाल रहे हो तो डेफिनेटली आप कुछ तो कुछ लर्न ही करोगे। देयर विल नॉट बी ये कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो थैंक यू वेरी मच। कुछ इम्प्रूवमेंट के सजेशंस भी आ रहे हैं, तो एज वी मूव ऑन आई विल cover the improvement suggestions also. Thing is that I am not a very much IT technically sound person and all, but I have a fair idea about this, तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। विजिबिलिटी या फिर आपका साउंड एंड ऑल, उसके लिए कुछ कमेंट्स है तो उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, एंड इट विल ऑफकोर्स टेक सम टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड। और जो चीज़ मैंने रियलाइज किया, ऑफकोर्स जैसे ये सिखाते सिखाते मुझे शायद टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि मैं ये लेक्चर सीरीज के थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। अदरवाइज टिल डेट मुझे कभी मोबाइल रख के रिकॉर्ड करना भी उतना पता नहीं था, बट आई हैव डन नाउ आई थिंक 10 लेक्चर्स ऑलरेडी देयर, तो वो कर रहा हूँ। तो दिस इज अगेन विन विन सिचुएशन जहाँ मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और मैं अपना क्या बोलेंगे एक्सपर्टाइज छोड़ के कुछ और चीज़ का सीख रहा हूँ, जो टेक सेवी जो बोलते हैं। ऑफकोर्स मैं उतना टेक सेवी नहीं हूँ, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, एंड प्लीज बी विथ मी थ्रू आउट दिस सेशन, एंड थैंक you very much, and that's all for today. Thank you. Thanks a lot. Thank you.